मुझे आपका परसेप्शन जानना है कि दैट ऑल्ट इतना डाउनग्रेडेड कंटेंट क्यों? I don't know what happened with time. Slowly and eventually we drifted to Gandhi Bath and shows like that. See, sky is the limit. I understand, but you have to be little practical. मैं तो लीड ही करूँगी, इतना पे करेंगे तो ही मैं करूँगी. That is being delusional. My first interaction with Ekta Kapoor. मैं डरी हुई थी and she looked at me. 1 minute, stay here. मुझे पता नहीं डांट तो नहीं पड़ रही है क्या? You have met any of the actor or content creator? जब आए थे तब ऐसा लग रहे थे कि बहुत cringe है, but then slowly all brands started making them the A-listers. I know where we are going. Urfi Javed, when she started. ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी बोलो, ड्रेसेस को लेके जो भी है. एंड नाउ अगर नेटफ्लिक्स का कोई शो हो तो उसकी अनाउंसमेंट भी वो करेगी, अमेजोन का ट्रेडर हो वो भी वो करेगी. डायरेक्टर्स ना व्हेन दे आर एक्सप्लेनिंग यू द सीन विल एक्ट इट आउट फॉर यू. सो दिस एक्टर शी इज लाइक सर एक्टिंग इज माय जॉब, डोंट टीच मी एक्टिंग. ओह साहिल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. Today's sponsors are Sukoon Design Studio. Sukoon Design Studio is an interior designing firm to transform your home into a place of sukoon and comfort. With their beautiful design and excellent execution, they bring your dream space to life, ensuring that every corner is filled with sukoon and happiness. And if you're looking to transform your home, then check the details below and fill in your information to get the free first-time consultation. Hello guys and welcome to Positive Talks, and today we have a very energetic and very positive guest, Ashima Vadan. She is an actor. She has worked in lot of web series like Amazon Prime's Cough. She's also worked in lot of TV advertisements. तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, लाइक हर जर्नी, इस इंडस्ट्री के अच्छे और बुरी चीज़ों के बारे में. हमने बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों को भी टैकल किया है. सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल देन एंड लेट्स बिगिन दिस कॉन्वर्सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम. So thank you, Ashima. Ashima, right? आशिमा, whatever you call. आप बस प्यार से बुला दो, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर it's आशिमा, yeah. आशिमा. So welcome to Positive Talks and thank you for coming. Pleasure to be here. बहुत मजा आएगा कॉन्वर्सेशन. वो कैमरा शुरू होने से पहले ही vibe is getting matched. I don't know how this conversation is going to go, but बहुत एनर्जी और पॉजिटिव से होगा. But we'll start with your journey. मतलब how you started, when you thought of coming in acting, and when it was कि मुझे एक्टर ही बनना. I never wanted to be an actor. Oh. If I look back in my school days, I did my journalism and journalism and what did I do? I did my journalism and mass communication. Sorry, I blanked out. हाँ, mass communication और journalism मैंने चंडीगढ़ से की. And while doing my course, मुझे था कि क्या यार, मैं जम्मू से हूँ, छोटे शहर. तो वहाँ क्या होता है, आप चंडीगढ़ तक निकल गए पढ़ने के लिए, उसके आगे ज्यादा से ज्यादा आप दिल्ली या गुड़गांव तक जाओगे. अच्छा. उससे आगे नहीं है हमारी बाउंड्री जाने की. ठीक है. तो मुझे था ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए ज्यादा से ज्यादा दिल्ली तक चली जाऊंगी, 25 तक जॉब, उसके बाद शादी, बच्चे सॉर्टेड. आई थिंक इट वाज माय डैड. I think my dad always wanted to be an actor. And after my graduation, when I was applying for different advertisement agencies, he came up to me in my room and he was like, Ashima, I think you should ना, पुत्र तू ना बॉम्बे क्यों नहीं ट्राई करती? And I looked at him. मैंने कहा पापा, मैं 4 फुट की, मुझे कौन देख रहा है वहाँ? तो ट्राई करना एक बार. क्या है, तेरी बहन है, तेरी मम्मा है, मैं हूँ, हम सपोर्ट कर रहे हैं. जा, थोड़ा टाइम लगा. You can always come back. And he was being practical about it. कि why don't you go and try your luck? मैंने ना उस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया. मैंने कहा अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं, कॉलेज के लिए भी बोला था, चली गई. यहाँ के लिए भी बोल रहे हैं, चली जाती हूँ. I was not one of those passionate about acting, very driven, nothing. Okay. मैंने कहा जाती हूँ, ट्राई करती हूँ. And then the moment you Google पे आप लिखोगे acting school, Actor Prepares has done a great job in terms of their profiling कि आप जैसे ही लिखोगे सबसे ऊपर Actor Prepares आएगा. So my dad was Anupam Khes, yeah. हमने immediately वो देखा and dad was like, you know what, यही करो. 3 months का डिप्लोमा कोर्स था, which is fair enough. वरना I think Barry John उन सबके I think 2-2 साल के हैं. I was like 2-2 साल नहीं लगाने मुझे यार. उसमें तो डिग्री हो जाती है. तो हमने वो किया and it's not like कि oh you come and join the school, pay the fee and you'll get enrolled. अच्छा. It's nothing like that. आपको they'll take your audition. I had no idea about it.
जब मैंने अप्रोच किया एक्टर प्रिपेयर्स, उन्होंने कहा ठीक है आपको इतने दिन पहले आना होगा, हमारा ऐसे ऐसे हम आपका एक इंटरव्यू लेंगे, नॉट ऑडिशन, हम आपका इंटरव्यू लेंगे। अच्छा। और इंटरव्यू के बाद देखेंगे एंड विल लेट यू नो इन 2 days। ओके। सो मी एंड माई मदर वी प्लान्ड इट लाइक दैट कि हम आएंगे, हम इंटरव्यू देंगे, 2 दिन और एक्स्ट्रा रुकेंगे, और अगर हो जाता है तो उसी के बाद मेरा पीजी वीजी फाइनलाइज करेंगे एंड देन मम्मा विल गो बैक एंड आई विल स्टे इन बॉम्बे। नहीं, आई विल आल्सो गो बैक एंड जब ओरिएंटेशन आई थिंक 15 दिन के बाद होगी, ओके, क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब मैं अकेली आऊंगी। आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड, आई टोल्ड दिस टू माय फादर एंड माय मदर, मैं अगर इंटरव्यू पास करती हूँ ओनली देन आई विल परस्यू एक्टिंग, अदरवाइज आई एम कमिंग बैक और मैं कोई जॉब करूंगी। अच्छा। वेरी क्लियर गई, वेरी नर्वस, देयर वर लाइक 4-5 टीचर्स बैठे हुए थे, प्रॉपर एज ए पैनल, यस, वो आपको स्टेज पे बुलाते हैं, नीचे टीचर्स बैठे हुए हैं, आप बैठते हो, वेरी नर्वस, यू हैड नो आइडिया अबाउट एक्टिंग, नॉर्मली टॉकिंग टू यू, देन दे गेव यू अ मोनोलॉग आल्सो, छोटा सा, थोड़ा टाइम पहले एक प्रिंट आउट दे दिया कि आप वो प्रिपेयर करो, एक बार डिलीवर करके दिखाओ। बहुत खराब, मतलब आई एम होपिंग कि उस मोनोलॉग की फुटेज अभी भी एक्टर प्रिपेयर्स में ना हो। बहुत खराब, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब। सिलेक्ट कैसे हुआ फिर? आई डोंट नो, बट आई रियली थैंक टू देम कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, वरना मैं नहीं आती एक्टिंग में। Okay. और बहुत क्लियर था मेरा कि नहीं करना है। So मुझे पता है मैं बहुत खराब थी, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग आई वाज लिटिल फ्रेंडली। सो या दे आर टीचर्स, दे आल्सो नो कि किस में कितना पुल ऑफ कर सकते हैं, किस में क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से मुझे 2 दिन के बाद फोन आया एंड आई गॉट इन। और ऐसा नहीं था कि जस्ट बिकॉज यू आर पेइंग तो आपको तो सिलेक्ट कर ही देंगे क्योंकि स्कूल को तो पैसा चाहिए। नो, आई नो इंटरव्यू के लिए कितने बच्चे आए थे। बहुत बच्चे आए थे, मतलब अराउंड 80 स्टूडेंट्स, और उसमें से 40 का सिलेक्शन हो रहा है। वो चाहते तो 80 के 80 भी रख सकते थे ना, पैसे तो मिल रहे हैं। सो बहुत आराम से बैठ के इंटरव्यू हो के, आई डोंट नो मेरी टचवुड में किस्मत अजी थी क्या थी, आई गॉट इनटू द स्कूल एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी। आई गेव माय 3 months एंड आफ्टर दैट इन 2016 January onwards I started giving auditions. 2017 end में I realized that you know what, I'm good at it and I like doing it, I enjoy it and I want to do it. So during that time you met Anupam sir? Yeah. Okay. He used to come for guest lectures और वो ऐसे हो जाते थे कि अगर 3 महीने, तो आई थिंक 3 महीने में 3 बार तो आए हैं वो। कभी भी आ जाएंगे, आपको उस दिन बताया नहीं जाएगा कि गेस्ट लेक्चर है। इमीडिएटली आप क्लास में अपने टीचर के साथ हो, यू आर डूइंग सम एक्टिविटी, और कोई आके अनाउंसमेंट हो जाएगी कि इतने बजे यू हैव टू इकट्ठा होना है आपको ऊपर ऑडिटोरियम में कि सर आ रहे हैं और एक गेस्ट लेक्चर होएगा। और उस गेस्ट लेक्चर में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी लाइक इन द सेंस I don't know अभी क्या सिनेरियो है, पर back in 2015 there were 4 courses, diploma courses, जो 3 months के courses है, एक साथ चलते हैं वो। अच्छा। So we have different classes. Okay. ठीक है। अब जब भी गेस्ट लेक्चर होएगा, चारों डिफरेंट बैचेस जो होंगे वो सारे साथ में आ जाएंगे। So अगर एक बैच में 35 स्टूडेंट्स है तो आप मैथ अपना कर लो, मेरा तो बहुत खराब है। तो इतने सारे बच्चे साथ में बैठ के सर के साथ एक लेक्चर होएगा, सर बात वगैरह करेंगे, कुछ एक्टिविटीज देंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। उसमें क्या है, अच्छा देयर आर किड्स हु आर वेरी एक्साइटेड कि कुछ भी हो, मोनोलॉग है, ये परफॉर्म करना है। एक तो मेरा ही कहने को मेरा भाई है, अक्षुन है उसका नाम। अच्छा। वो मेरी क्लास में था एंड जस्ट बिकॉज ही वाज फ्रॉम पठानकोट एंड आई वाज फ्रॉम जम्मू, तो मेरी उसके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी सेट हो गई। ही यूज्ड टू सिट सबसे आगे क्लास में, और कुछ भी हो I'll do it. Ma'am, please, me. I think I was the only one. मैं ना नहीं जाती थी। मैं थोड़ी शाय थी। I was very nervous. I was very shy. And I was like, इनके सामने मैं क्या एक्ट करूँगी? और क्यों करूँगी? नहीं करना मुझे। So I remember there was this one particular guest lecture where चारों बैचेस साथ में बैठे थे, and उसमें सर आए और सर ने कहा मैं बुलाऊंगा और 2 लाइन परफॉर्म करेंगे, लेकिन मैं चूज करूंगा, सबको चांस नहीं मिलेगा। एंड किड्स वर लाइक सर मी। आई रिमेंबर वहां पे ना एसी लगा होता था, मुझे ठंड लगी थी, तो मैं ना एक छोटा सा शॉल लेके बैठती थी। अच्छा। तो मैं पीछे कोने में शॉल लेके बैठी हूँ। पहले एक स्टूडेंट गया, दूसरा गया, सर पिकअप कर रहे हैं, तीसरा चौथा, मेरे आगे एक स्टूडेंट बैठता हाथ खड़ा करके। सर ने कहा या यू, तो ही गॉट अप एंड सर वाज लाइक नॉट यू, द गर्ल सिटिंग बिहाइंड यू।
शॉल लपेटी वाली. He said, जो शॉल में है. Ooh. I was like, oh God. And he noticed also कि मैं इतने टाइम से हाथ खड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं वॉलंटियर नहीं कर रही थी. I still remember that day very clearly. मैं बहुत नर्वस थी. मैं गई स्टेज पे सर के साथ खड़ी हुई. मैं तो वहीं डर गई आधा में. उसके बाद उन्होंने बताई ये 2 लाइन्स है. I don't remember the lines very clearly, but I remember it was something like you are little hurt, angry, you are in pain, and you are delivering this lines to someone जो रिश्ते में आपसे बड़े हैं एज में, but you don't like that person. अच्छा. या तो पहले मैंने एक बार डिलीवर की, सर ने कहा ओके. अब मैं खड़ी हूँ, कहते मेरी तरफ मत देखना, तुम इस साइड देख के डिलीवर कर रहे हो, ठीक है. He started saying some things कि oh you don't like this person has done very bad to your mother. ये किया है, वो किया है, इतना हर्ट किया है तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को बॉदर किया है, ये वो. So I got little, all the emotions started flowing in my body. Okay. And then he's like, now say your lines. And I did that and I got 100 rupee note as a token of appreciation from him. Oh, wow. Yeah, that was the moment where it hit me hard and I was like, you know what, I can do it. Under right guidance. So जो पहले आपका जो perception था कि acting is okay, but once you got into this, जो emotions अनुपम सर ने आपके अंदर जो भरे and then it came out. So exactly what is acting when you want to tell to the audience or your fans? Acting क्या है? There are now 2 things I personally feel. एक तो है जो naturally है. People say it. No one can teach you acting. क्योंकि हम there are techniques to it. Yeah, but क्योंकि हमने कैसे सुना है कि कुछ लोग 1-2 दिन अपने आप को बंद कर लेते हैं, लाइन करते हैं. ये क्या उस emotions में उस character? I have no idea about it. This is another level of acting. When people talk about it कि मैं दरवाजा बंद कर. ये क्या है? मैंने अभी तक touch wood ऐसा कुछ experience नहीं किया. And honestly speaking, I don't want to be. I don't want to experience such things. क्या ये तो mental torture हो गया ना? Mental torture हो गया. अब जब सर ने जो मेरे साथ की वो acting technique थी. He used one technique on me and it worked. So I think there are techniques which you can learn from school. पर एक्टिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता. सो आई थिंक इट्स द प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स साथ में आप करते रहते हो विद टाइम. ऑफ कोर्स व्हेन आई लुक बैक माय सेल्फ एंड माय वर्क बैक इन 2017, 16, 18 एंड नाउ आई नो दैट आई एम मच बेटर एज एन एक्टर टुडे. एंड आई एम श्योर यही बात मैं आगे यहाँ से 5 साल के बाद भी सेम चीज बोलूंगी. बिकॉज विद टाइम यू ग्रो, यू इवॉल्व एंड यू वर्क ऑन योरसेल्फ. यू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, यू अंडरस्टैंड सर्टेन इमोशंस. और बहुत सी चीजें आपकी लाइफ से भी ड्रॉ होती हैं चीजें. आप जो वो वैसा सिनेरियो या सिचुएशन एक्सपीरियंस करते हैं. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस. कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड बी प्रेजेंट. ये जो फोन्स ने किया है ना कि यू आर आउट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन दिस, नॉट गोइंग टू हेल्प यू. इवन इफ यू आर आउट अलोन, जस्ट सिट देयर वेयर यू आर एंड ऑब्जर्व. आगे पीछे देखो लोग क्या है यार, ये साइकिल चला रहा है बंदा, इसकी क्या स्टोरी होगी. यहाँ माँ और बच्ची एक बैठे हैं खेल रहे हैं. यू जस्ट लुक एट देम, यार वो इतना मजेदार है. And then you make another world out of them. So it's like observation is very important. Very important. So don't you have a father feels like he wanted to be an actor, right? And मैंने कल ही शायद आपके स्टोरी पे भी देखा, you had shared your I know. So that's very funny and very cute conversation, I would say. तो उनको आज कैसे लग रहा है कि you are such good movies, खौफ मूवी में आप आया, that one of the best, मतलब मुझे लगता है हॉरर में बहुत अच्छा था वो. देव डीडी तो है ही, ऐसे बहुत सारे आपने किए हुए हैं. So how he feels today? No, he's very happy and proud of it, no doubt in that. But I have to give it to 2 other people in my family. That is my mother and my sister. They have been my constant support system. Whatever I am today, it's all because of them. Because क्या होता है, अभी तो मैं मम्मा के साथ रह रही हूँ और अपनी सिस्टर के साथ ज्यादा कॉन्वर्सेशन रहती है, पापा के साथ बीच में. एंड व्हाटएवर आई एम गोइंग थ्रू, आई डोंट शेयर मच विद माय पेरेंट्स, स्पेशली विद माय डैड. वो दूर बैठे, उनको क्या स्ट्रेस देना है. और ये ऑडिशन वर्कआउट नहीं हुआ, अरे वो ये बोलेंगे कोई बात नहीं पुत्र, दूसरा देख लेना, हो जाएगा. बट माय सिस्टर एंड माय मदर, they are constantly pushing me. They are my cushions. Wow. Yeah, उनके बगैर नहीं हो पाता.
मुझे उनके लगता है बगैर मैं कि काफी पहले बॉम्बे छोड़ के वापस चली गई होती मतलब. मुझे लगता है कि when you have such good support, ना it's very good, very Touch wood. yeah, it's really touch wood. कि my I'll tell about myself as well. My mother was always behind me कि पढ़ाई सब ठीक है, but I need some creative thing coming into you because पढ़ाई सब होती रहेगी, उसमें भी आप आगे जा सकते हो. It's not like that. पर एक क्रिएटिव माइंड होता है ना, आप बिजनेस हो या पढ़ाई को भी बहुत क्रिएटिवली लेते हो. वेरी इंपॉर्टेंट. सो मॉडलिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, दिस वाज वेरी कोर फॉर हर कि तेरे को कुछ करना ही है. That's very very modern of her, yeah. So seriously, I would say about her कि at the age of 40 she wanted to become a doctor. So whatever the past things let go, but at the age of 40 she went into college, she studied. What are you saying? She became a dentist. Wow. So she's an inspiration, seriously. तो मुझे लगता है ऐसे जब पेरेंट्स होते हैं ना, चिल्ड्रंस ऑल्सो वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. सो मैं इसी पे आ रहा था. व्हेन इट कम्स कि किसी को ना आउट ऑफ द बॉक्स अपने, मैं कहूँगा कि जो उनकी लेवल सेट हुई है या जो उन्होंने अपने आप को बांध लिया है, उससे बाहर आके कुछ अपनी औकात से बाहर जाके करना है. मुझे लगता है you had never thought of becoming an actor. Yeah. It was completely like out of my league. out of your league. So वैसे जब उनको कुछ out of the box जाके करना है, so what are focus points they have to keep while growing? I'll be very honest with you. Gen Zs, इनको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है. Okay. No, they are very smart. They are very calculative. They know कहाँ से मुझे काम कैसे निकलवाना है. वो फ्री में किसी को थप्पड़ ना मारे Gen Z. Honestly. And whenever I look at them, I'm like, dude, इसकी उम्र में तो मैं कितनी ढैंचू इंसान थी. Dumb. I have like फिल्म सेट्स पे क्या होता है, आपके जो यंग एडीज होते हैं या कॉस्ट्यूम में असिस्टेंट्स हो गए या स्क्रिप्टिंग में हो गए, दे ऑल आर जेन ज़ीज. दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे विल नॉट टॉक टू यू लाइक ओ सर मैडम. यूजुअली हमारा ऐसा मिलेनियल्स का रहता है ना, मैम सर ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर होगी. इफ दे डोंट फाइंड एनीथिंग करेक्ट दे विल से ऑन योर फेस कि नहीं सर बट वो तो ऐसे था ना, वो तो नहीं आपने कल ऐसे बोल दिया था कि ऐसे था. So they are very smart. I don't think they need any sort of guidance. They are very confident. They know कि अपना काम कैसे निकलवाना है. And I think, I don't know, technology है क्या है, यहाँ भी time ऐसा चल रहा है कि मैं Gen Z से ज़्यादा सीखती हूँ, to be very honest. So but when I feel, मतलब ये जो पूरा podcast का जो मेरा vision था, to tell the youngsters out there कि the story behind every struggler or every successful person today, तो शाहरुख खान से ले लो या कोई भी बड़े सक्सेसफुल अमिताभ बच्चन तक ले लो, कि आज वो बड़े वो ग्लैमर पे है, बट वो ग्लैमर इज नॉट द अट्रैक्टिव पार्ट. यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रगल बिहाइंड व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेक यू देयर. बिकॉज वो ग्लैमर लोगों को बहुत इल्यूशनरी और इमेजिनरी बना देता है, बट रियलिटी में जो मेहनत उन्होंने की है वो स्टोरीज, और दैट इज द रीजन आई ब्रिंग सच कैरेक्टर्स ऑन माई पॉडकास्ट एज अ गेस्ट, कि उनकी स्टोरी भी लोग सुने कि भाई एक्टिंग 2 मिनट में नहीं है, कोई भी सेक्टर के कोई भी लोग 2 मिनट में बने नहीं है, बहुत मेहनत की है. सो मुझे जितना लगता है ना, आज के जेंजीज में वो एनर्जी भी है, बट समवेयर वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज में शायद ज़्यादा खो गए हैं. दैट इज मेकिंग देम लेजी समवेयर. बहुत जल्दी परसेप्शंस बना लेते हैं. नहीं, there are 2 type of Gen Zs also. Okay. One is very smart, very quick, changes बहुत जल्दी adapt कर देते हैं. दूसरी कैटेगरी पता क्या है, जिन्हें काम नहीं करना. Okay. Yeah, and I think corporate sector is facing a lot of issues with Gen Zs. Okay. जो मुझे पता है, which is good also and bad also. Why I tell you bad? Okay. Bad is because of course corporate is like कि यार 2 जनों का काम एक से निकलवाते थे, अभी Gen Z कर नहीं रहे हैं. Good इसलिए because Gen Z is telling them that dude, मतलब क्या machines नहीं, हम इंसान हैं. आप हमें एक पर्टिकुलर जॉब के लिए पे कर रहे हो, we're gonna do that one only. बस. Do that one. Yeah. मिलेनियल्स थे जो जॉब बचाने के लिए भी ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे. Gen Zs are not like that. So 2 ही हैं, या तो बहुत स्मार्ट है, very upfront, या तो नहीं काम करना है, बहुत लेजी है. When any young girl out there who wants to come into the acting world, yeah, and this industry, yeah, so how you feel this industry is about the I'll say trustworthy or loyalty, कि सच में it's a very easy path for outsiders, or
बहुत क्या आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ अच्छे लोग भी है, मतलब बुरे भी है उतने ही। किस तरह से आपने एक्सपीरियंस किया है इन दिस इंडस्ट्री? I have been very lucky when it comes to about working with people. लोग बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं इंडस्ट्री में, टच वुड। बट कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं where people will just come and tell you that you know what, you should reconsider about acting. Oh. Yeah, that happened way before my first show. Okay. Way before DD. Imagine someone who's young, naive, has no idea about the city और कैसे काम मिलता है, क्या है, कुछ नहीं है। I was working on something, I will not discuss that. का जो डायरेक्टर था, प्ले का डायरेक्टर था, he told me, आशिमा तुम ना रिकंसिडर करो थोड़ा ना, मुझे लग नहीं रहा है तुम्हारे बस का। It shattered me. It hurts a lot, no? I was like, really? And I knew that point also why this person is talking to me like that. क्योंकि उनकी एक क्लास में he was expecting some sort of an answer from everyone, और जो सबने दिया मैंने वैसा आंसर नहीं दिया। What I felt in that moment, I was being honest with myself and with him also, and I gave him that answer. It was not disrespecting or below the belt. It was nothing like that. Okay. It was just something different what he wasn't expecting. और उस खुंदस में he gave me this thing. So that hurt a lot, no? It did, but मैंने उस रात को सोचा भी इस बारे में, and अगले दिन भूल गई। लग जाओ काम पे, it's okay. और भूलना बहुत जरूरी है। बॉम्बे में इस प्रोफेशन में भूलना बहुत जरूरी है in terms of आप ऑडिशंस तो भूल जाओ। And when I say भूल जाओ मतलब भूल जाओ, ऐसा भूल जाओ कि अगर आपको उस ऑडिशन वाला इंसान, आपको कास्टिंग वाला कॉल कर रहा है ना कि हाय आशिमा, आपको याद होगा लास्ट वीक आपने यहाँ, तो मेरा आगे से रिप्लाई होता है हाँ, नहीं मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि मुझे सच में याद नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ। फिर वो व्हाट्सएप पे वो मैसेज हाईलाइट करके भेजेंगे, दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट, देन ओ या ना मैं कैरेक्टर्स याद रखती हूँ, ना मैं ऑडिशंस याद रखती हूँ, ना मैं मीटिंग्स याद रखती हूँ। मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, भूल जाती हूँ। और उसी हिसाब से कोई अगर आपको नेगेटिव कॉन्वर्सेशन हो रही है आपके साथ, आपको कोई पुट डाउन कर रहा है, भूल जाओ, उसे भी भूल जाओ। हाँ, आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने ऊपर फेथ रखो, बट डिल्यूजनल मत हो। डिल्यूजनल इन द सेंस आई हैव सीन, अब क्या आई हैव सीन, आई हैव डन इट टू माई सेल्फ ऑल्सो यार। Okay. नए बच्चे आते हैं ना, तो मैं तो लीड ही करूंगी। अच्छा। मैं तो लीड ही करूंगी, मैं तो इसी प्लेटफॉर्म के साथ में तो यही, अगर इतना पे करेंगे तो ही मैं करूंगी। दैट इज बीइंग डिल्यूजनल। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर रियलिटी। यू नीड टू नो आप किस एक्सटेंट तक जा सकते हो। सी, स्काई इज द लिमिट, आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू बी लिटिल प्रैक्टिकल। यू कैन नॉट सिट एट होम अनटिल अनलेस यू बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली। तब आप घर पे बैठोगे जब तक मुझे लीड का ऑफर नहीं आएगा। आपने ऐसा क्या किया ऑफर के लिए, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट स्टिल जब तक लीड का ऑफर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं करूंगी। ठीक है, आप घर पे बैठो, योर पेरेंट्स आर देयर टू फंड यू, गुड फॉर यू। बट अगर आपको अपना रेंट देखना है, आपको सब कुछ अपना खुद मैनेज करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट फॉर समवेयर यार। और हमेशा बड़ी छलाई कैसे मारोगे यार? पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। तो पहला स्टेप कांट बी योर, no one is launching you. When it comes to the youngsters, जैसे अभी हमारा पहले डिस्कशन हुआ about the Gen Zs, they are very upfront कि हमें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। This is the same thing, right? Yeah. थोड़ा बहुत same thing. They don't want to try, they don't want to experiment. They have, what was I saying? Perception बना के आते हैं कि इतना में इतना ही है, इतना में इतना ही है। But when you want to be the best, I would say the best बनना है, तो उसके लिए you need to experience everything and then you need to create a line of thought कि यार ये चीज़ के लिए मतलब people are using, we need to be alert of it, we need to be very aware of it। तो मुझे लगता है ये जो क्वालिटी है पहले ही, मतलब फर्स्ट डे पे कोई परसेप्शन बना के आते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं, और फिर 5-6 साल खत्म होने के बाद they give up and say industry is bad। यार बेस्ट चीज़ पता है क्या है इस इंडस्ट्री की? सबके परसेप्शन तोड़ती है, सबके अच्छे से अच्छे के, बड़े से बड़े के। अच्छा, when I say बड़े से बड़े means star kids। See, of course, world is very different for them. Things are way easier for them. Okay.
they also come with this perception ना चलो ठीक है लीड एज अ लीड लॉन्च हो गए सब अच्छा जा रहा है, जब फिल्म नहीं चलती फिर क्या होता है? हाँ परसेप्शन तो उनका भी टूटा ना। So you have ever faced this outsider and insider, मतलब वो क्या? नहीं मैं outsider insider नहीं बोलूँगी, but yes there was this time when I faced something similar, which was I was auditioning for a movie. Glad it didn't happen. Glad मना कर रहे, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। Movie बनी नहीं? बनी flopped. Oh, big flop. I was trying very hard for it. Gave one round of audition, second round of audition, third round में director wanted to meet me. उस meeting के लिए उसी दिन मुझे meeting से 2 घंटे पहले कॉल आता है कि director को कोई important meeting के लिए जाना है, तो we'll reschedule your meeting. Okay. Probably next week. I was like, okay, fine. I was very excited, and then next week I had to move out of Bombay for a shoot. So I called these people, casting people, and I told them कि मैं नहीं होंगी यहाँ पे, तो आप देख लो क्या है मीटिंग का, कोई बात नहीं, we'll let you know whenever you are back, just drop us a message. Okay. पर हम आपको बता देते हैं। तो the moment she said that मुझे पता चल गया कि अगर करनी होती ना तो अभी तक कर लेते हैं, कुछ तो झोल है। 2 to 3 weeks later, I saw an article on Instagram and they launched a Star Kid. Yeah. Okay. For that particular part. Then again I got a call for that film only, to play the other girl in that film. Okay. But अब मैं सोचूं ना तो शायद मैं अगर अभी मेरे साथ ऐसा हो तो शायद मैं हाँ कह देती। उस टाइम मैंने मना इसलिए कर देता बिकॉज आई वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन DVD सीजन 2। और फोन कैसे करते हैं, आप अवेलेबल हो, कल फ्लाइट लेनी है, परसों से शूट है। मैंने कहा यार तो अवेलेबल होती भी ना तब भी नहीं आ पाती इतनी जल्दी। Now coming to your shows, अपने इतने सारे shows के, you started with पवित्र रिश्ता, उसमें भी काम किया? No, I didn't start it. Okay. Yeah, I started with Dev DD. पवित्र रिश्ता came much later, I think back in 2022. You started with Dev DD, right? So Dev DD's alt का जो series है, एक you worked with Ekta Kapoor का production. So how is working with Ekta Kapoor? The experience was very good because it was my very first show. And second, when you say working with Ekta, it doesn't mean literally you're working with her. She's just the head of productions and she's handling everything. And you hardly get to meet her. Like, एक टाइम शो लॉन्च पे मिल जाओगे और एक टाइम प्रॉबली प्री प्रोडक्शन के टाइम पे मीटिंग वगैरह हो जाएगी। मेरी तो उनसे जब मैंने शो साइन किया था तब भी मीटिंग नहीं हुई थी। आई थिंक हम एक बार वर्कशॉप गए थे, रीडिंग हो रही थी ऑफिस में, और तब वो जो होली का होता है, पूजा होती है और यू पुट समथिंग, आई थिंक लोहड़ी का सीजन था, कुछ वैसा चल रहा था। मैं ऑफिस में आई और माय क्रिएटिव डायरेक्टर और एकता मैम नीचे थे एंड शी वाज विद हर पंडित एंड ही वाज डूइंग सम पूजा। तो क्रिएटिव डायरेक्टर शी लुक्ड एट मी और मैंने दीवार के पीछे से छिपकली की तरह चिपक के खड़ी हुई थी, क्योंकि जब ऐसा है वहां पे बालाजी में ऑफिस में, व्हेन एकता मैम एंड हर मदर इज देयर, व्हेनेवर शी इज कमिंग और गोइंग फ्रॉम द ऑफिस, यू जस्ट हाइड इन अ वे, उनकी पेरिफेरी में मत आओ अननेसेसरी। या और क्या होता है, बाहर के लोगों को ना थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के सुनाई जाती है, तो मुझे तो लगा भाई मुझे कहीं तो छुपना है, मतलब मिस्टर इंडिया वाली घड़ी ढूंढ रही थी मैं, तो मैं दीवार के पीछे छुप गई थी। क्रिएटिव डायरेक्टर ने मुझे देख लिया, शी सेड कम आई वाज लाइक आई कांट पीपल टोल्ड मी नॉट टू कम, मैं नहीं आ सकती। शी सेड शट अप कम, मैं आई, दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद एकता कपूर। ओके, एंड मैं डरी हुई थी एंड क्रिएटिव डायरेक्टर आई, ओ शी इज आशिमा who's playing Devika, and she looked at me and we shook hands and she was like, oh hi lovely, 1 minute stay here। मैंने कहा पता नहीं डांट तो नहीं पड़ रही है क्या है। Then she make me do that entire पूजा होली वाली कि पंडित जी ये हमारे नए शो की लीड है, पूजा कराओ। I did whatever पंडित जी told me, सब हुआ and then I said thank you। She was like okay fine, और मैं फिर ऊपर रीडिंग के लिए चली गई। तो that was our first meeting and I didn't want to make conversations with her, to be very honest, कि hi ma'am what's up, how are you, what's happening, no I was like hi ma'am hello, क्या बात करती है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। That was the first time I wasn't mentally prepared, but that was a very good encounter I had with Ekta ma'am. Okay. And my director was very good in the show. That's why I think I had a great time working with Ken Ghosh. He taught me everything. When I say everything, means everything. So I was coming on that. How was the experience working on your first? मतलब उसमें आपको इतना lead का मौका मिला, Dev DD, and I have seen entire पूरा every episode of it.
is such a strong, open-minded and very crazy woman in that. But the season 1 तो बहुत अच्छा था, seriously. So उसमें कैसा experience था? Because that was the first time you were on front of the camera, I would say. Exactly, yeah. और इतना बड़ा production में आपको काम करने का मौका भी मिल रहा था. I had no idea कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी. मैंने सिर्फ डायरेक्टर को एक चीज बोली थी. When I met him, when I got the final call, when director told me that, you know what, on my behalf, I'm pitching you as Devika. Okay. I'm telling Ekta that I like this girl. Okay. You, because producer has to take the final call. So, but मेरे हिसाब से आप हो. But then I told him. मैंने कहा सर, ये जैसा कैरेक्टर आप बता रहे हैं ना, नहीं होगा. I'm not this person. नहीं हो पाएगा मुझसे. Okay. He's like, you know what? हमने मॉक शूट खत्म ही किया था. मेरा मॉक शूट अभी खत्म हुआ था सर के साथ. अच्छा. मॉक शूट की भी एक अनदर स्टोरी है. उस दिन तो मैंने अपने दिमाग में डाल दिया था मेरे लिए नहीं है, तो टाइम पास हो रहा है यहाँ पे. सो आई टोल्ड हिम कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा. आई डोंट थिंक आई एम रेडी येट. लाइक मैंने कभी काम नहीं किया है, कैमरे के आगे कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है. और लीड पार्ट मतलब अगर इफ यू आर शूटिंग फॉर 60 days फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज देयर ऑन ऑल द 60 days. Okay. Not even one day off for me. As your lead, so as a lead, yeah. Hardly, I think एक दिन off था जब उनका कुछ तो अलग segment उनको shoot करना था उस दिन. तो I think एक दिन मुझे off मिला था season 1 में, जहाँ तक मुझे याद है. Because me and my director we had this conversation. So he only told me one thing कि कहते जैसे तूने अभी mock shoot किया ना, मैंने जो बोला तूने किया ना चुपचाप. Just follow my lead. Whatever I tell you to do, just do it. You're good at copying. Because I literally used to copy my director कि सर आप करके दिखाओ. Then I used to look at him कैसे कर रहे, कैसे हाथ हिला रहे हैं, कितनी बार words repeat कर रहे हैं, कहाँ हो रहा है क्या. ऐसा करना ना, हाल कॉपी. So season 1 मैंने सिर्फ अपने डायरेक्टर को कॉपी किया है. एक छोटे बच्चे की तरह I used to go to him. सर इस सीन में क्या करना है. Then he used to act like Devika, behave like Devika. I think he's still Devika. ठीक है. And I used to copy him. Okay. तो मैंने पूरा सीजन बिना कोई सवाल किए. And I think director like that. They do like it. Where this actor has full trust कि whatever you tell me sir I'll do it. It was like that. क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया था नहीं मैं क्या कर रही हूँ. सही गलत तो बहुत दूर की बात है. कर क्या रही हूँ मुझे वो भी नहीं पता. So I just followed his lead and I was happy and I felt safe, secure and truly respected as and seen as an artist. So but कभी-कभी ऐसा होता है कि एक्टर्स थोड़े से होते हैं कि हमें खुद का ही प्रिपरेशन करना है. हाँ तो फर्स्ट टाइमर्स का क्या? You have experience मतलब वैसे कि yeah many and bay actors. Okay. Bay actors, directors ना when they are explaining you the scene, there are some directors and it makes their work little easier also कि अगर आप किसी को कोई scene explain कर रहे हो तो वो ना थोड़ा by default they'll act it out for you. Right. They don't want to do it. Then there are directors जो थोड़ा एक्ट कर भी देंगे और बोल देंगे जैसा मैंने किया वैसा मत करना, do it your way. और वो खाली समझाने के लिए they do it. So this actress, she's like, जब डायरेक्टर ने किया, she's like, sir, acting is my job. Oh. And I was like, acting is my job. Acting is my job. Don't teach me acting. You tell me what's the mood and everything. Scene explain कीजिए. Acting उसके लिए मैं हूँ. ऐसे होते हैं लोग इतना एरोगेंट हैं मतलब. यार एरोगेंट नहीं. अब यहाँ पे भी ना पावर प्ले है. अच्छा. Power play क्या है? Oh God. When the actor is bigger than the director. Actor is bigger than the director. अच्छा. You cannot say such a thing in front of Sanjeev Leela Bhansali. Can you? You can't. आप जितने भी बड़े एक्टर हो. Okay. वो लेजेंड है यार सामने वाला. You cannot. But if you have done quite a few work and आपको पता है कि मैं इतना काम करके आ रही हूँ और हिंट मैंने नेशनल अवार्ड भी ले लिया एक्टिंग में. तो और भी ले लिया है वो. तो उसके बाद आप उनको एक्टिंग नहीं सिखा सकते. मुझे लगता है ना एक्टर्स आर ग्रेट इन देयर वर्क बट एंटायर मूवी का जो स्टोरी होता है, द स्टोरी राइटर्स आई वुड से, जो राइटर्स होते हैं, द डायरेक्टर्स, आई थिंक दिस पीपल आर द कोर ऑफ the entire movie. Of course. Yeah. Of course. But somewhere you feel like actors को सारी limelight मिल जाती है. हाँ. अब वही बात हो गई ना ब्रांड और प्रेजेंटर. There's this brand और ये आपका ब्रांड एम्बेसडर है.
लाइट, लैम्पलाइट कौन खा रहा है? ब्रांड एम्बेसडर। सो एक मूवी का ब्रांड एम्बेसडर कौन हुए? एक्टर्स, क्योंकि लोग हमारे थ्रू फिल्म देख रहे हैं, राइट? हम उनको दिखा रहे हैं, वी आर दी फेसेस। एक्टर जो कैरेक्टर्स हैं उनको लाइफ कौन दे रहा है? एक्टर दे रहा है। सो बट मुझे लगता है कि व्हेन वी आर गाइडिंग यूथ और वी आर टेलिंग देम, सो द बिहेवियर वाइज व्हाट डू यू थिंक इज राइट और रॉन्ग? ये पावर प्ले करना चाहिए या वी नीड टू बी गुड टू द क्रिएटिव पर्सन जो डायरेक्टर है एंड स्टफ? You need to be not, when I say you, not means actors. When I say you means everybody on set. Every department head, everybody. Actor, director, writer, DOP, your ADs, फलाना ढमकाना, जो भी काम कर रहा है, you have to be good with each other. You have to be very respectful, but yet you need to know where to draw your line. As an actor, बहुत बार मेरे साथ ना होता है ऐसा कि कभी कभार ना मुझे कुछ सीन्स में कंफ्यूजन हो जाती है और मैं डायरेक्टर से जाके पूछ लेती हूँ। ये नहीं कि आप गलत बता रहे हो और मैं जो सोच रही हूँ मैं सही सोच रही हूँ, नहीं, आपने जो मुझे बताया वो तो सही है, पर मेरी ना एक कंफ्यूजन है क्योंकि पिछले सीन में या 2 सीन पहले हमने ये बात की है और ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, तो क्या ये सही है सर? आई थिंक आपकी अप्रोच, आपकी टोन, हाउ यू अप्रोच टू दैट टॉपिक और दैट प्रॉब्लम मैटर्स अ लॉट, राइट? सो आई थिंक जब आप अपने आप को ऑलरेडी डायरेक्टर से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, तो ऑलरेडी अगर आप अपने डायरेक्टर को एक स्टैचर पे रख के खुद नीचे रह के अप्रोच करोगे कि सर मेरा ना एक कंफ्यूजन था, ऐसा ऐसा है, तो कभी कभार चीजें भूल जाते हैं डायरेक्टर्स तो बहुत चीजें भूलते हैं यार, क्योंकि उनका दिमाग 10 जगह होता है। एक सीन चलते वक्त भी वो सीन ऐसे करेंगे। देयर आर टाइम्स देन जब डायलॉग्स हो चुके हैं हमारे एंड यू जस्ट हैव टू लुक, क्योंकि डायरेक्टर को पता है इस सीन के एंड में मैं म्यूजिक बिल्डअप दूंगा, तो मुझे म्यूजिक बिल्डअप की फुटेज चाहिए, हमें नहीं पता ना। सो डायरेक्टर का दिमाग बहुत जगह चल रहा है, तो अगर आपकी कोई ऐसी कंफ्यूजन है या एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो आप एक तमीज तरीके से अपने आप प्रेजेंट कीजिए। एरोगेंस से नहीं आना चाहिए। आई रियली वांटेड दिस आंसर। मतलब मुझे लगा था कि सो ट्रू, मतलब दिस इज व्हाट ना यंग जनरेशन शुड अंडरस्टैंड ना कि सी मुझे पता है बहुत अच्छा भी it backfires you when you becoming too good na, too good, too friendly, too adjusting. It does. You said ki we need to draw a line. Yeah, that is also very important when it comes to in a professional world कि बहुत ज़्यादा ओवर यूज, जैसे हमारे कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा होता है, भाईचारे में बहुत काम ना ऐसे फ्री में करवा लेते हैं। You need to draw a line, but at the same time ना you need to have a good approach as well. You need to be outspoken but in a good way. Yeah. ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये तमीज़ भी लोग भूल गए जो मिलेनियल्स नहीं भूल पाए अभी तक। नहीं, हम नहीं भूल सकते। हाँ। हमें चप्पलें पड़ी हैं बचपन में यार, कैसे भूलेंगे हम? So coming to your serial part, Dev DD, it got into alt Balaji. You might know अभी recently alt has gone banned by Indian government. It's ALTT, not just alt. Alt ही है ना वो, yeah. So alt ban हुआ है, other all apps also सब ban हो गए हैं, and the government has given a justification on it कि यहाँ पे soft porn दिखाया जाता है. And to be very frank ना, season 2 मैंने देखा नहीं था. When we started having a conversation, I saw, मतलब वो research करने के time पे I saw the season 2. So in the first time I went to alt, क्योंकि पहले भी alt में देखा था, तो alt पे गया, खोलने के बाद ही I thumbnails, मतलब I was like कि आंखें बंद कर लूँ, and then I went to Z and I watched entire series. So मुझे भी कहीं ना कहीं मतलब ना लगता है कि it was very wrong. So मतलब मुझे आपका perception जानना है कि that alt इतना downgraded content क्यों? I think they started with a very good shows. Okay. Their first 5 shows, जिसमें से एक मेरा शो था, because I remember that night when they launched the app and there were the star cast of every show, good people, good actors, big actors were there. I don't know what happened with time, या वो economics कैसे चल रही है किसी भी platform की, कि कितने views मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, because slowly and eventually we drifted to Gandi Baat and shows like that. I do not support it because I don't like that content. I don't enjoy it.
forget the thing कि ओ लोगों के लिए कंज्यूम करना अच्छा है कि बुरा है. Unfortunately उस चीज पे numbers आए, views आए is equal to पैसा आया. And they kept on making it. I think Ekta ma'am realized it much earlier that you know what, it's my time to sell this. Okay. So I think no, it's not a part of Balaji anymore. Nah. Okay. I think it happened so that is ending of 2023. That's why TT. Okay. So she realized it and she was like, you know what, now I don't want to be associated with it. What do you think कि ये जो soft porn बोलो या जो see when I also had seen few interviews of Ekta ma'am as well कि और जो A-listers जिसने alt पे काम किया हुआ है पहले in the beginning ना they used to give justifications like ना कि स्कूल में हमें सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती तो हाँ मतलब इन द बिगनिंग अभी तो एकदम ब्लंडर हो गया बट व्हेन यू आर टेलिंग कि स्टार्ट में सब अच्छा था पर थोड़ा बहुत कुछ यार इफ यू आर मेकिंग अ शो लाइक सेक्स एजुकेशन ऑन नेटफ्लिक्स ना मैं तब भी मान लूं या तो वैसा बनाओ लिटरली सेक्स एजुकेशन है तो फिर दो अच्छे से तमीज से एकदम बढ़िया तरीके से एजुकेशनल सीरीज निकालो एंड आई थिंक एंड आई होप कि कोई उसे रोकेगा नहीं कोई बैन नहीं लगेगा. मुझे लगता है वो सेक्स एजुकेशन नहीं बता रहे तुम एक अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड यूथ के लिए बना रहे हो कि ये ऐसा होता है सेक्स it is so bad for the coming generation. Yep. Do you think that? But I think coming generation is also very smart. वो तो आगे पीछे सब अपना रिसर्च करके आई हैं. वो तो है. अगर someone is coming to watch such content, मतलब उसने आगे पीछे सब देखा हुआ है. But जो villages में रहते हैं या 2 tier 3 tiers में रहते हैं ना, I think they have a lack of education on such parts. मतलब इनके स्कूल में भी पढ़ाया नहीं जाता है. ऐसी सारी चीजें जब इजीली एक्सेसिबल हो जाती है क्योंकि फोन तो आजकल सभी के हाथ में बच्चे के हाथ में. मतलब जो पैदा होता है तो फोन के साथ ही पैदा हो रहा है ऐसा तो फोन तो सभी के हाथ में. व्हेन दिस पीपल आर लुकिंग ना ये मास ऑडियंस है मुझे लगता है और इसी को व्हेन यू सेड इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है तो यही ऑडियंस को जिनको पता ही नहीं है क्या होता है ना the people living in Mumbai, people living in Delhi, they might be very much aware of this. कि ये सब तो भाई पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं. When we are as a content creator, we do educational reels. पर हमें पता है ब्रांड्स उन्हीं लोगों के पास जाएंगे जिनके ज्यादा व्यूज है और वो है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें ऑडियंस को भी एडुकेट करना चाहिए थ्रू पॉडकास्ट और थ्रू अनदर मीडियम्स कि what is the right content, what is the good content. Entertainment is good, but there is a line. हाँ. ठीक है, people say after 18 you get this sensibility to understand what is right or wrong or good or bad. It is respective. हर किसी का अपना तरीका है. But एक तो ना इस चीज से भी आता है कि कौन सा इंसान किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कितने सप्रेसिव रह चुके हैं. क्योंकि आप देख लो अगर 2 tier 3 tier सिटीज वाले लोग हैं और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज वाले लोग हैं उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग ही बहुत डिफरेंट होती है. दे टॉक वेरी फ्रीली. यहाँ ये बेचारे डर के रहते हैं. देयर इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर कमिंग बट आई थिंक एज अ फिल्म मेकर और एक्टर्स इट्स योर आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड इट्स अ बिग वर्ड ऑब्लिगेशन कि हाउ यू वांट टू एक्सेल इन योर करियर yet keeping the moral obligation towards the society. कि मैं ऐसा क्या काम नहीं करूंगी कि क्या काम करूंगी जिससे मैं खुश भी रहूंगी, मेरे घर पे पैसा भी आएगा और मैं सोसाइटी को केटर भी कर रही हूँ, एजुकेशन भी दे रही हूँ. So true. Yeah. And that's a very difficult situation, by the way. Let me tell you how. So, for example, fairness creams. Okay? Pond's कितने हैं अपने? So every time you see all these leading ladies in Bollywood, whether it's Priyanka Chopra, now we'll say Kiara, a lot of other actresses, when you just start your career, you get Pond's is one of those brands जो आपको एकदम capture कर देता है. I think 12th fail के बाद मीरा शंकर जब आई तो immediately she was the brand ambassador for Pond's. Now they say it's not only a fairness cream, it is also confidence, blemishes हटा रही है, दाग धब्बे हटा रही है, जो भी है. अब there are actors, अब जाके प्रियंका चोपड़ा बोलते कि I don't want to do any fairness brand because she has reached that level where she can say no to all these things.
अब एक्टर पे भी तो है ना कि वो बेचारा एक्टर अपना घर कैसे चला रहा है, या एक्टर क्या कितना है, आप बोल रहे हो लाइक्स और कमेंट्स एक एक्टर के लिए कितना होता है कि मेरे पास कितने ब्रांड्स हैं। बहुत जरूरी है मतलब। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आज मैं शायद जो बोल रही हूँ या जिन चीजों के लिए मैं एग्री हूँ, आज से 5 साल बाद मैं ना हूँ, क्योंकि शायद 5 साल बाद एक अच्छी पोजीशन में होगी कि आई कुड से नो टू फ्यू थिंग्स जो मैं आप आज के टाइम पे नहीं कर सकती। तो क्या मैं बुरी हो गई या मैं गलत हो गई? नहीं ना। नहीं, धर्म संकट बोल सकते हैं एक्टर्स। एग्जैक्टली। So you have also worked in I think Pilgrim का कोई Pilgrim, yeah. मतलब again they portray it as like dark spots हटा देते हैं, ये there's nothing related to fairness or anything like that. But I worked it because I need ads, I need to run my house. I am not saying कि oh if you are dark skinned person you're not beautiful. Did I say that? No. तो मुझे इतना ही लगता है कि ऑडियंस नाउ हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। यार बताओ ना, एक्टर्स इतना करते हैं कि ओ वी आर सो हेल्थ कॉन्शियस, हम ये नहीं करते। कोक की एडवर्टाइजमेंट तो करते हैं, हैप्पी फिज कितना शुगर है उसमें, बराबर। और फिर आप मुझे एक और चीज बताओ, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट इतनी सिनेमा थिएटर्स में हर थिएटर के अंदर फिल्म स्टार्ट होने से पहले चलती है ना गुटखा पान इस विस की एड्स, हर बंदा देखता है ना। और अब आप देख लो कितने यंगस्टर्स आपको दिखेंगे स्मोक करते हुए, तो वो भी चल रहा है। वो तो जबरदस्ती आपके चेहरों पे थोपा जा रहा है कि भाई फिल्म स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये नहीं चलेगा। हम तो दोनों चीजें केटर कर रहे हैं, ये भी। यूजुअली जब बड़े बड़े एक्टर्स को ये एलिगेशंस लगते हैं टू प्रमोट पान मसाला एंड स्टफ, दैट इज तो आजकल वो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी एंड ऑडियंस इज आल्सो backlashing these people, but the money they get for it, but no, it's up to their moral value ki you get really attracted to the money or you don't want to do it for your people. It's I think it's a personal choice. मुझे इतना लगता है ना कि but you know when people are backlashing such actors ना, वो सबसे ज्यादा इकोनॉमी में कंजम्पशन गुटखा और सिगरेट, गवर्नमेंट नोज इट यार, हमें कहाँ से इतना टैक्स आ रहा है, इट्स आउट देयर। सो ट्रू। ये सुमड़ी में रह के बात करने वाली बात नहीं है, सबको सब पता है। मुझे ना वन ऑफ द कॉन्वर्सेशंस जो मैं पूछने वाला था कि यू हैव मेट एनी ऑफ द एक्टर और कंटेंट क्रिएटर, मतलब मेट और एक्सपीरियंस कर रहे हो जो रियलिटी में बहुत अलग है? नहीं, रियलिटी में बहुत अलग नहीं, वो तो सब है ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन सब अलग अलग है। बट जब आए थे तब ऐसा लग रहे थे कि बहुत क्रिंज है, बहुत खराब है, बट देन स्लोली ऑल ब्रांड्स started making them the A-listers. I know where we are going. So you have There are lots. There are lots. You have anyone experience? But there is one prominent name. अब विवाद हो जाएगा इस बात पे तो ले लो if you really think of it. Okay, I'll try to put it in right words. People know her. She's very famous, and I want to say for all the good reasons, but Urfi Javed, right? When she started, with ठीक है अपनी creativity बोलो, dresses को लेके जो भी है, people backlashed her so badly. FIR हो रही है, complaints हो रही हैं, ये हो रही है, I don't know. Hats off to her, कैसे उसने डील किया है, it's her strength. But I know when I used to sit with my set of people, oh no, that's cringe. ये यही करती रह जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा उसे, ठीक है, काम थोड़ी कोई देगा, इससे काम थोड़ी मिलता है। एयरपोर्ट लुक्स और कुछ भी बोल दो, नहीं उससे नहीं मिलेगा, ये खाली अभी की बात है, ये क्या हुआ? She knew how to navigate. उसने ट्रैक्शन भी ली, व्यूज भी लिए, एंड नाउ अगर नेटफ्लिक्स का कोई शो हो तो उसकी अनाउंसमेंट भी वो करेगी, Amazon का ट्रेडर हो वो भी वो करेगी। सो इट हैपेंड, इट वर्कड। मैं ये नहीं कह रही कि शायद सबके साथ होगा, नहीं होगा, but she was smart enough to when to start and when to stop and where to stop. To be very frank, I would say
whatever her thoughts were, I don't know, हाँ. इतना वो प्लान करके आई थी या उसने सिचुएशंस को बराबर से टैकल किया नहीं किया, we cannot judge over here. बट मुझे लगता है ना, जो देखने वाले हैं, हम जब नेगेटिवली भी चिल्लाते हैं ना, दैट नेगेटिव मार्केटिंग इज आल्सो सो बिग ना, इट इज मोर पावरफुल देन द पॉजिटिव थिंग. या सीरियसली, मतलब लोगों ने उस पर इतना बैकलैश किया, पर एवरीवेयर ऑन एवरी स्क्रीन, गंदा तो गंदा, बट ऑन एवरी मोबाइल फोन स्क्रीन शी वाज अ हाउसहोल्ड नेम. यस, मतलब मम्मियों को भी पता है, गंदा बोलो फिर भी पता है, सबको पता है. I was like, wow. I think this is not Urfi's talent. I would say this is the technology, जो algorithm बोलो या audience बोलो यार. But tell me one thing, you know how to initiate it. She risked her career. So true. उसे पता है कि मे बी इसके बाद शायद मुझे काम ना मिले, पर अभी खोने को और क्या ही है, तो चलो कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई दिस. वो डरी तो नहीं ना. घर, एक बात है, घर पे नहीं बैठी वो. कितने लोग यहाँ घर पे बैठते हैं या तो शहर छोड़ के चले जाते हैं. ना उसने किसी की तारीफें की, या आप ही हो, आप ही मेरे करता धरता, नेवर. जो भी है वो अपने बलबूते पे है, which is commendable. So but this यही चीज ना, मैं जब बोलूँगा कि the good creators हो गए, the good actors हो गए, जो अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सालों से. I would take few names like कभी पंकज त्रिपाठी ले लो, फिर मनोज बाजपेयी सर ले लो, ये सब, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ले लो, ये सब ना इतने साल तक घिस के मेहनत करके अपनी पूरी स्टोरी बना दी है. शाहरुख, इन दैट वे शाहरुख खान एज वेल, कितनी मेहनत की इन लोगों ने, बट देन they took so long, so time to reach to the level they are today. Yeah. बट ये जो नेगेटिव चीज होती है, ये आपको नहीं लगता गलत है? नहीं, ये पता है क्या, हमारे लिए ना यहाँ बैठ के बोलना इज वेरी इजी. ठीक है, हमने वो सिचुएशन नहीं देखी है, या उस चीज को लेके ओपिनियन देना इट्स वेरी इजी. पीपल हु हैव गॉन थ्रू इट, हु हैव फेस्ड इट, दे नो. गलत सही तो यार हम कोई होते भी नहीं है कुछ डिसाइड करने वाले, ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. बट पीपल हु हैव वर्कड सो हार्ड, जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं ना, I think because they worked so hard, that's why they were able to reach where they are today. Right. मतलब पंकज त्रिपाठी यार, मतलब अगर वो किसी चीज के लिए 2 सीन के लिए भी आए ना किसी शो में, लोग एंजॉय करेंगे उस चीज को. So true. And the amount of respect these people have. तो इनके लिए तो कोई कुछ गलती से भी गलत नहीं बोलता. नहीं, बट that is not the thing. मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत की, इनको इतना वक्त लगा है. The creators or the actors और उर्फी जावेद जैसे जो है क्रिएटर्स, वो नेगेटिव मार्केटिंग, कुछ भी कपड़े पहन लो. But it also depends ना how long they last. I wanted to come out there. वो भी डिपेंड करता है, and that time will only tell. I'm sure she must be getting a lot of work in terms of acting also. Yes, she has a following. Come on, she has it. If she'll work on herself, she knows कि अब इसके बाद मुझे ऐसा लगता है I need to work on myself. Let me take some acting classes. I can do this. I can do that. अपने आप को किस हिसाब से नेविगेट करके वो कहीं और भी जा सकती है, एंड शी इज स्मार्ट इनफ टू डू दैट. बट यू रियली थिंक इन द कमिंग टाइम इट इज नॉट अ बिग थ्रेट कि सिर्फ फॉलोअर्स के नंबर्स को लेके पीपल आर, डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, आर पिकिंग पीपल, एंड द ऑथेंटिक एक्टर्स जो है उनको कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है. जैसे नाउ यू हैव कम फ्रॉम अ एक्टिंग स्कूल जहाँ पे आपने मेहनत किया, आपने डिप्लोमा किया है, ऐसे बहुत सारे लोग हो गए या ऑडिशंस दे के थक गए बेचारे, बट उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है, फॉलोअर्स नहीं है उनके पास. और हम, चलो मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मेरी फॉलोइंग बहुत अच्छी होगी, सो इट डजंट मीन दैट आई शुड कम इनटू एक्टिंग. बट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं इसके पास तो ऑडियंस है, इसको ले लेते हैं, इसके पास नंबर गेम्स है. सो दिस इज नॉट रॉन्ग समवेयर. किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था इस प्रोफेशन में आने के लिए, आप अपनी दिल से आए हो. नाउ यू नो द सराउंडिंग. Now you know the atmosphere, now you know the math behind it. Still you are doing it, it's your choice. Okay. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें चीज़ें बदलनी है, पर हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं अपनी डेडिकेशन के साथ. Okay. A producer is someone who will always think about multiplying his money. उसे लॉसेस में नहीं जाना है, वरना वो दूसरा शो या फिल्म नहीं बना पाएगा. तो उसे अपना पैसा देखना है. But I have to tell you, till now also now,
there are actors, there are not actors, directors and producers also who are not actually looking for numbers. When I did Cough, you know, I auditioned for Madhu's part, the lead one. Yeah, they didn't ask me for my Instagram following. And by the way, when she started shooting for the show, she had much lesser following than me. Okay. फिर तो अगर हम followers देखे तो मैं ज्यादा capable हूँ, मुझे पार्ट मिलना चाहिए। नहीं ना, मैं तो आपसे पूछा, ये चलता है क्या इंडस्ट्री में? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, मेरे शो के साथ तो नहीं चला यार। Okay. मेरे शो पे अगर आप देखो, कोई भी ऐसा नहीं था जो बहुत ही पॉपुलर फेस, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स, कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। Chum became Chum after Big Boss. Big Boss, yes. Because Chum was only the face, I guess, जो Big Boss के बाद उतना नाम कमाया था उन्होंने। क्योंकि Big Boss के बाद आप घर में घुस गए हो ना। You are planning for ऐसा कोई TV shows, मतलब reality shows? I'll be very honest with you. I don't think I'm that smart. But every time ना आपके साथ ऐसे ही हुआ है कि from the start of the journey which you are telling me, कि मुझे लगता नहीं था मैं एक्टर बनने, मुझे लगता नहीं था मैं ये कर रही हूँ, but slowly things start coming up. But something like Big Boss, I'm sorry, but you have to be very strong mentally. मेरा problem पता है क्या है? If like, let's suppose if today I have a fight with you, okay? Now I don't want to see your face. Okay. अब मैं उसी घर पे लड़ाई करके उसी से बात कर रही हूँ, उसी की प्रेजेंस में हूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे। बट यू हैव एनी आइडिया कि रियलिटी शोज सच में उतने रियल होते हैं या बहुत स्क्रिप्टेड होते हैं? मुझे जितना बिग बॉस का पता है, जितना मैंने लोगों से सुना है, आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद अंकिता लोखंडे। शी वाज देयर विद हर हस्बैंड। दे टोल्ड मी इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड जैसे लोग आगे प्रेजेंट करते हैं। ओके, वैसा कुछ नहीं था। So I'm assuming वैसा नहीं होगा। चुम से मैं मिली थी बॉस के बाद, पर मेरी उससे शो को लेके बात नहीं हुई। We were much happy about our show, Cough, and we were celebrating that. Yeah. How was Cough for you? मतलब वो एकदम बहुत बड़ा सीरीज था अपना, मतलब हाँ। I had comparatively very less days in terms of shooting compared to other actors because my part was in flashback in the show. पर उस हिसाब से भी I had such a great time working with these three people: Smita, our show creator, Surya, and Pankaj Kumar. Every time they will just sit. There's no rush, no hurry. They'll sit, they'll explain you the scene, and they'll tell you also. Okay. कि क्या मन है करने का. अच्छा. ऐसा है, ऐसा कर लेते हैं. This is working. ऐसा कर लेते हैं ये. But it was a cakewalk for me. अच्छा. I will not deny, and I will not brag. I don't know about other actors, but I know for myself specifically in Cough, hard से hard scenes के लिए भी 1 take or max 2 takes for the technical issue. अच्छा. 1 take, okay, moving on. Rehearsal, we'll roll, got it, moving on. Literally, it was that fast. मतलब मैं as an actor में एक बार भी exhaust नहीं हुई कि मैं थक गई हूँ या मैं रो के थक गई हूँ, मैं चिल्ला कि नहीं, it was 1 or 2 takes max. Okay. They were so clear what they wanted. Edit wise पंकज सर का दिमाग इतना शार्प था कि नहीं, अगर किसी टेक में प्रॉब्लम, अरे नहीं वो तो मेरे कट के बाद है, वो इट्स ओके, तब उससे पहले तो मेरा सीन ही कट हो जाएगा, इट्स ओके। वो नहीं एग्जॉस्ट करते थे अपने एक्टर्स को। एंड व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग सो मीनिंगफुल, while shooting only I could feel the grandness bolo or the creativity of the show. I knew that we are making something unique and massive. It got a very good response. Very good, touch wood. Very good response. Very good response. I'm very happy. I'm very happy to be a part of it. Even if it was a smaller part. मुझे ना थोड़ा ऐसा हो गया था कि they auditioned me for Madhu and now Monica is doing it. Damn, I wanted to be a part of this show so badly, but now I won't be. It's okay. Then I got a call again that there is one more part, but it's a flashback part. Would you be interested to do it? I was like, anything. मुझे बैकग्राउंड में पेड़ बन के भी खड़ा होना पड़ेगा ना शो में, वो भी करूंगी. I was very desperate to be a part of it क्योंकि मैंने स्टोरी सुन ली थी पहले. Now what are the future plans? क्या आप काम कर रहे हो, कौन से फिल्म्स में? Future plans आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे पता नहीं कितने लोग पागल है मेरे पीछे. अरे of course है.
I तो really enjoying your ना energy, I would say. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि whichever set you will be and your presence will be ना, it might be making difference. यार अब मैं अपनी तारीफ कर दूंगी तो ऐसा कैसे चलेगा? कर मैं नहीं रहा है। बोल सकती, हाँ मैं नहीं बोल सकती that you are right. मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब this 1 hour conversation और उसके पहले भी हमने बात की, तो that I really felt that positive energy. Thank you so much, means a lot. वही positive energy के साथ बता दो आपके next films के बारे में. कैसे बोल रहे हो फिल्म्स के बारे में? You are so confident ना? मुझे तो लगता है फिल्म्स ही होगी. नहीं. Because that is what level you're coming अभी खौफ के बाद. I really wish that, but yeah, there are 2 films. Okay. I don't want to talk much about it. One is a Hindi film and one is a regional film. Okay, wow. Yeah. So it is Amazon or theater, Netflix क्या scene है? I have no idea. And I think it's that is वो तो बाद में producers and everything. बाद में same happened with Wild Wild Punjab. अच्छा. जब हम शूट कर रहे थे, I was under the impression कि मुझे बोला गया था कि it's a theater release. अच्छा. And later on it came on Netflix. Yeah. ये एक सवाल भी था मेरे मन में कि theater releases are good enough or OTT platforms, because the actors like you, the outsiders जो होते हैं जिनकी कोई connect नहीं होती, they sometimes feel कि OTT platforms are very good because और जगह खुल गई है लोगों को काम करने के लिए. But when it comes to like I would take आमिर खान सर, वो बड़े नाराज है OTT प्लेटफॉर्म से. वो बड़े कह रहे हैं घर पे आके दे रहे हो आप. हाँ, वो बड़े नाराज आप घर नहीं आओगे, थिएटर नहीं आओगे देखने के, तो हम घर पे आके आपको मूवी दिखा देंगे. आपको क्या लगता है, थिएटर इज मोर प्रोमिनेंट कर सकते हैं? पैसा भी तो लगता है ना थिएटर रिलीज में. सो मुझे वही जानना है कि OTTs आर बेटर और थिएटर्स. पर्सनली आई एंजॉय कम्युनिटी व्यूइंग. I love sitting in a theater, watching a film, comedy, horror. वो फील ही लगाते जब सब ये सब साथ में हंसते हैं. That's a different feel. Okay. So मैं personally theater ज़्यादा enjoy करती हूँ, but there are then long format. आप हमेशा ऐसा करते ना, फिल्म कितने 3 घंटे की है, ना. पर आप 3 क्या 20 घंटे भी घर पे बैठ के आप कोई शो देख लोगे. बराबर. So I think हर किसी के अपने प्रोज हैं, कॉन्स हैं. पर मुझे लगता है where OTT platforms have brought more opportunities for a lot of people, for actors like us, जिन्हें टेलीविजन करने का भी मन नहीं है और अब मूवीज के लिए कोई पूछ नहीं रहा, तो हमारे लिए ना OTT बहुत अच्छी स्पेस है. क्योंकि OTT में ना बहुत बार ऐसा भी नहीं होता कि प्रोड्यूसर बोल रहा है नहीं वी नीड बिगर नेम्स ये वो, ताकि थिएटर में लोग आए. अभी तो घर पे बैठ के देखना है. मुझे लगता है OTTs में ना क्या एक अच्छा पार्ट मुझे लगता है कि वेरी गुड कंटेंट. दे आर नॉट लुकिंग फॉर फेसेस और इवेंचुअली आई वुड से नंबर्स एज वेल. दे आर कमिंग विद अ गुड कंटेंट. या वेरी फ्यू ऑफ देम, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. अच्छा. बहुत से प्रोजेक्ट्स में पहले ही मीटिंग में ही ऑफिस में डिसाइड हो जाता है कि सब, मतलब एक डायरेक्टर ने मुझे बताया था कि उनके पास ऐसे लिस्ट आ रही है लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस की. लेट्स सपोज आई वांट टू से इट मैनिफेस्टेड. आशिमा 3M, सो 3M, कार्तिक 4M, वैभव 1M. तो व्हाट इज दिस M and तो उसने पूछा कहाँ से? अरे no, those are their followers, this thing. So how does it matter? मुझे ऑडिशन देखने हैं उनके. So बहुत बार ऐसे भी होता है. तो वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. Like with Khof, when I spoke to show creator Smita, she was very clear from the beginning only. She told Amazon also, I am looking for actors. I am going to call them for auditions, और जिनके auditions मुझे पसंद आएंगे मैं उन्हीं को ही लूंगी. मुझे followers नहीं चाहिए सर. मेरी story बहुत strong है and I need people who can perform really well. Wow, यही चाहिए. मतलब मुझे लगता है कि number games is good for marketing stuff, but जो creativity है वो number से नहीं आ सकती. Number से नहीं आ सकती. But creativity is more important. Everyone should bring out that creativity rather than numbers. बहुत बुरा लगता है. But this is what now the future is. I feel so. ये होने वाला. I don't want to say it honestly. चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ. Oh shit. When it comes to money और creativity, मतलब मुझे लगता है ये acting field में ना सबसे ज़्यादा क्या, sorry to cut you, but acting field में क्या होता है ना, basically पैसा हर जगह एक बहुत बड़ा बैरियर बोलो आ ही जाता है. तो इसलिए प्रोड्यूसर्स नहीं देखते कहाँ क्रिएटिव, हमको सिर्फ पैसा कमाना, जैसे यू ऑल्सो सेड मी. सो फॉर यू मनी
or creativity? What will be more important? Of course, money. I'll tell you why. Right. And I will justify my answer. Money will keep me running in the industry. I need money to do work. Right. जब तक मेरा घर चलेगा, मेरा पेट चलेगा, मैं और काम कर पाऊंगी. अब क्या होता है, कभी कभार आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो ऑन पेपर वेरी हाईली क्रिएटिव, कुछ पार्ट्स मिलेंगे हाईली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पार्ट्स, बट दे डोंट हैव दैट मच मनी टू गिव यू. नाउ इट्स अप टू यू कि आपको इस प्रोजेक्ट में उतना कॉम्प्रोमाइज करना है कि नहीं करना है. दिस सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस आई लाइक इन द इंडस्ट्री, where they say you have to compromise with money. We'll give you a good part. It's a great story, but we don't have that much money to pay you. So there are actors, and I know a lot of actors who have done that. Okay. कि it's okay, you know what? क्योंकि मैंने पिछला शो किया था, it was a shit show, bad character, nothing to offer. I did it for money, and I've done that in my career also. अच्छा. पैसे दे रहे हैं ना अच्छे, हाँ कर लूंगी. And the moment you get done with that, you get something which is very exciting and you want to do it, but they don't have much money to pay you, but you're like it's okay, मैंने जो मेरा रेडिंग सीजन का पैसा जो था वो मैंने इससे बना लिया ना, पीछे से मैं ये कर लेती हूँ. Mental satisfaction is very important. I think this conversation also ना we need a good maturity level of things, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है. पैसा बहुत ज़रूरी है यार. There's nothing goes without money. आप कितना भी क्रिएटिव बोल लो, आप कितना भी बोल लो, बहुत अच्छा है, बट पैसा ज़रूरी है. जहाँ प्रोड्यूसर फंस जाता है, सब इंसान फंस जाते हैं, and there where creativity keeps on dying. Yeah. But मुझे लगता है कि उसके साथ क्रिएटिविटी को भी पकड़ के रखना चाहिए. That is a responsibility of an audience, of an actor, or every person who is best in their field, I would say. Let's go back to Ekta ma'am कि चलो ऐसे shows थे जो भी थे. She made Lipstick Under My Burqa ना. She made such a fab film it was. Wonderful. वो तो सुनते ही उन्होंने कहा कि you know what, I want to tell this story and I will make it. It's okay. मुझे पैसे नहीं बनते मेरे इस फिल्म से, पर मैं करूँगी. So she's also doing such good deeds. Good deeds. कर रही हैं वो भी. वो कोई नहीं देखता, वो कोई appreciate नहीं करता. नहीं करना चाहिए, किया है of course. वो तो अच्छा मूवी था. It didn't make money now that way. But it's okay. It was her mental stimulation के लिए था वो कि you know what. Satisfaction. Yeah, कि मैं ये फिल्म लोगों को दिखाऊंगी. It's okay. अगर कोई और distributor presenter नहीं मिल रहा, I'll do it. मुझे लगता है ना यहाँ पे सब ऑडियंस का खेल है. This is everything audience thinks कि how they are making things big or how they are making things. कि पंचायत जैसी सीरीज भी है जो जब किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तब कहाँ बूम कर गई वो. क्या बूम कर गया. मतलब people are like crazily they are waiting for such series. Yeah. So now when it comes to your rejection part and stuff, you have any spiritual things you follow in your life to be strong, because आपके प्रोफेशन में बहुत रिजेक्शंस होते हैं, आपको ऑडिशंस भूल जाने पड़ते हैं. हमारा तो एक्सेप्टेंस से ज्यादा रिजेक्शन होते हैं. मतलब तो बुरा भी नहीं लगता. Oh, it didn't work out. So it's okay. Next time. So you are inbuilt that way, या ये अभी सिचुएशन? नहीं, with time, being in this city, okay, धक्के खा के सीखा है कि आप दिल से, हमारे एक्टिंग स्कूल में भी ये बात बोली थी किसी एक टीचर ने, दिल से मत लगाओ. और मैं कोई भी काम भी अपने दिल से नहीं लगाती while shooting also. Okay. What I try to do, I'm shooting for something, it's great, I'm enjoying it, I'm loving it. Pack up, schedule wrap, show खत्म, moving on. मैं भूल जाती हूँ कब रिलीज होगा, कब क्या होगा, भूल गए. Very good quality. Move ahead. You have to. क्योंकि मैं एक बार हुआ था मेरा, जब मैंने कोई चीज दिल से लगा के रखी थी एक शो को, and it turned out to be a very bad one. I cried that night watching it. और रोते रोते मैंने अपने एक डायरेक्टर फ्रेंड को फोन किया. I was in a different city. I finished my show. Okay. And I called him up and I was crying, howling. And he was like, oh, what happened to her? वो फ्लाइट चेक करने लगे कि अभी इमीडिएटली कोई फ्लाइट मिलेगी, let me go meet her क्या. Then he told me कि तुम्हें दिल से नहीं लगाना है बेटा चीज़ों को. It's okay. कुछ तो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा उससे. वेस्ट तो नहीं गया. पैसे बनाए ना तूने, तो एक तो वो टिक हो गया. पैसे बनाए, हाँ, तो रोना बंद कर पहले. अच्छे लोगों से मिली, बहुत अच्छे लोगों से मिली मैं while shooting for that particular project. हो गया ना, ठीक है ना. अब और क्या दिल से लगाना, लाइफ इतनी लंबी है यार, लंबी है, आके आपको बहुत काम करना है. राइट. तो फिर उस टाइम के बाद, उस दिन से I had this perspective where
I like to disconnect myself with projects. This gives a very clear vision for the coming times, I would say. We'll come to a last and a wonderful question, जो है आप youth को क्या बताना चाहोगे? What is your experience and how you're going to guide them? I'm sure बहुत लोगों ने बोली होंगी, oh, never give up, believe in yourself. But people who are specifically want to be a part of this industry and who are just starting, अभी बेचारे बॉम्बे आई हैं या एक्टिंग स्कूल से बाहर निकले हैं, मैं एक टिप देना चाहती हूँ उन्हें. Okay. कभी भी कोई भी आपको ये बोले कि ओ यू जस्ट गिव मी दिस मच मनी, आई विल गिव यू दिस प्रोजेक्ट, या मैं इस प्रोजेक्ट में तेरी कास्टिंग कराता हूँ या कराती हूँ, या ये प्रोजेक्ट तुझे लाती हूँ तो इतना मुझे पैसे दे दे. कभी नहीं करना. People might call me कंजूस. There are few of my friends who call me कंजूस that way. मैं किसी को 10 रुपए ना दूं, इतना मुझे है, तुम मुझे ऑडिशन ला के दो, मैं वो क्रैक करूंगी, वहां से रिजेक्ट हो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर तुम मुझे बोलो कि ओ गिव मी दिस मच मनी एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गेट दिस पार्ट, नेवर हैपेंस. Okay. Or people will tell you, oh, I'll get you your Cinta card made or this card made or artist card made. Forget anything, card, project, anything. If someone is asking you money before your shoot, yeah, before you get your payment from that particular shoot, run away. Block that person right away. Okay. पैसा किसी को देना ही नहीं है. कोई इंसान आपको काम दिलाने के लिए पैसा नहीं लेगा. हाँ, I understand. There are coordinators who charge certain commission, 20-25%, 10%. वो काम देने के बाद ना, राइट? काम देने के बाद, जब आपको काम मिल जाएगा, आपकी पेमेंट आ जाएगी, उसके बाद that is still sensible and understandable. People are telling you कि नहीं, I'll get you this project, just give me this money. Frauds. पैसा किसी को देना ही नहीं. कोई भी पैसा मांगे नहीं, कंगाल. This is the best advice I would say. मतलब एक्टिंग के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस है. It's very true. मतलब जब हम मॉडलिंग कर रहे थे ना, ये सारे बहुत ऐसी चीजें होती थी. फोन करके हम आपको ये काम दे देगी, ये एड शूट दे देगी, ये फोटो शूट पे आपको बुला लेंगे. Nothing works. Nothing works. And in general, what you would tell every youth? भूल जाओ यार. The best advice I have got from you. भूल जाओ. और ज्यादा तो हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारा इनकाउंटर होता है अच्छे लोगों से और बुरे लोगों से. हमें क्या होता है, हम बुरे लोगों को ज्यादा याद रखते हैं. इसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये, वक्त आएगा ना तो इसे दिखाऊंगी. सबसे पहले उन्हें भूलो. हाँ. अलग ही लिबरेशन मिलेगी आपको. आप बुरे लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया ना, भूल जाओ. और जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया, और स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, या जब आप कोई चीज कुछ भी अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में आप कुछ भी शुरू कर रहे हो, आपकी इनिशिएशन में उन्होंने आपको हेल्प किया, always remember that. Definitely. Always remember them and keep them with you. So how was this positive conversation today? I had a great time chatting with you. Yeah. But I think it was much needed. मुझे लगता है मैंने काफी टाइम के बाद किसी से इतनी बात की है, अपनी जर्नी डिस्कस की है. And also it's my first podcast. Oh, so wow. Nice. Very excited. मजा आएगा. मजा आया ना यार, मुझे तो मजा आया. मुझे वाइब बहुत अच्छी लगी. That's all the point. Positive talks. पॉजिटिव लगना चाहिए. जो गेस्ट आते हैं, अभी मैं भी अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट ये मुझे अपने गेस्ट से सुनने मिलता है कि whoever person is coming as a guest, they feel like they forget there are cameras and all, and they start speaking whatever they have in their mind, और मजा आता है. This is how it should be. It should be. And luckily, podcast यही होता है. We तो have a system of trimming. Sahil, I'll be very honest with you. क्या होता है ना, बहुत सी चीजें मैं as an actor, there are things which I really want to say it out loud, but right now, I don't think I have reached that level or stature where I can say it. ठीक है, तो बहुत बार आप ना जाने अनजाने में चीजें ऐसे बोल देते हो जो आप मीन भी नहीं करते हो, और क्योंकि आप पब्लिक आई में हो तो आपको बैकफायर कर जाती है. So somewhere same goes with one of the big podcaster. Yeah. Her career literally it's to the end, I would say. Yeah. तो आप मीन नहीं कर रहे हो. मे बी उस टाइम पे, उस मोमेंट में, आई वॉन्ट टू साउंड कूल, सो आई सेड समथिंग जिसका मतलब भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने किसी को कहीं बोलते हुए सुना था एंड साउंडेड कूल. या अभी मैं बोलूंगी ना तो शायद ये बात सुन के लोग हंसेंगे. वो हो जाता है. और हमारे एंसेस्टर्स ने इसलिए कहा है, मुंह से निकली हुई बात
वापस ही नहीं जाते। ऑफिस नहीं जाते। नहीं, मेरा भी तो आई हैव अ बिग माउथ यार, मैं भी बहुत चीजें बोल देती हूँ। बट टुडेस कन्वर्सेशन वाज वेरी इंस्पायरिंग। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सीखने मिलने वाला है जो अपकमिंग एक्टर्स हैं, जो रियलिटी है इंडस्ट्रीज की, वो वी हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट इट। और जो बुरा है वो बुरा है, सबको पता है क्या अच्छा या क्या बुरा है, सबको पता है। I think every girl or every person who is watching this podcast, they should understand you being you. ये थी मैं ऐसे आई थी। जिसको पसंद है लो, नहीं तो फिर get out. This is what every person should think of। कि आपने जैसे बोला कि ये थिंग मैंने भी अपने लाइफ में ली है, लूंगा मैं, लूंगा मैं, भूल जाओ। I think it keeps you out of depression also. Depression तो मुझे लगता है बहुत बड़ा शब्द बना दिया है आज, but I think सैडनेस होती है जिसे आज हमने डिप्रेशन का नाम दे दिया है। पर मुझे लगता है पहले भी होती होगी, लोग इतना एड्रेस नहीं करते थे। कोई आके बोलता नहीं था कि यार आई एम फीलिंग लो। आज फिर भी आपके दोस्त यार बोलेंगे आई हैड अ बैड डे, आई हैड अ लो डे। पहले कोई नहीं बोलता था। सब किसी को, जैसे इंस्टाग्राम है, किसी को अपने बैड डेज नहीं दिखाने हैं। सबको हाई फाई लाइफ, मैं हैपनिंग हूँ, मैं ये हूँ, वही दिखाना है। बैड डेज नहीं जाते। मैं क्या घर पे बैठ के रोती नहीं हूँ? रोई हूँ, बहुत बार रोई हूँ। बट देन यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि और कितना रोना है। 4 घंटे और रोना है तो चल ठीक है रो ले। अब 4 घंटे का टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। So you have to be practical and you have to self-talk is very important. You tell yourself it's okay, you got it. lot of times. ये मैं बताऊं, मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी इसके पीछे। मैं ना बचपन में ना अपने आप से बहुत बात करता था। That's the best thing. People used to think I'm a crazy person. हाँ. लोग पागल समझते थे। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज ना मेकिंग योरसेल्फ हैप्पी है। मतलब मुझे लगता है खुद से प्यार करना इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। खुद से बातें करके चीजें आधी से ज्यादा सॉल्व हो जाती है rather than everyone। क्योंकि सब, मैं किसी को बुरा भी नहीं बोलूंगा, पर सबके पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं। You are not matching with that perspective ना, then you feel like अरे यार ये तो बुरा है, ये तो बुरा है। अगर मैच हो गया, बुरी बन जाती है। हाँ, मैच हो गया तो आप उसको भगवान बना लेते हो, और उसके बाद में कभी ब्लंडर कर दिया तो हाँ। तो मुझे लगता है कि खुद से बात करो, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड इट इज अ वेरी, आई वुड से, spiritual thing for me to spending time with myself. I do that. Very good. I love it. पहले ना मुझे थोड़ा लगता था बुरा when people used to say, "Oh, I need my space" or "me time." Now, what is this me time? Like fancy you need it. मुझे लगता है किसी और पे डिपेंडेंट होने से ना खुद पे ही डिपेंडेंट रहो। Because मुझे from a journey I have come ना, कि दोस्त छूट गए, ये परसेप्शन मैंने भी बहुत बार बनाया कि टाइम नहीं दे रहे। यार सब बिजी है, क्यों टाइम देंगे? तू कौन है? ठीक है दोस्त ठीक है, बट दोस्त जरूरी है लाइफ में। पर दोस्तों के ऊपर डिपेंड रहना अपनी हैप्पीनेस के लिए कि अगर मेरा दोस्त मेरे साथ यहाँ चलेगा तो ही मैं खुश हूँगा, या मेरा दोस्त मेरे साथ इस मूवी के लिए देखने चलेगा तो ही मैं वो मूवी देखने जाऊंगा। दैट्स रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आप दोस्त रखो पर उन पर डिपेंडेंट मत रहो यार। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी जिंदगी है। और हम जिस एज में आ गए, यहाँ तो लोग ये शादियां हो रही हैं, तो बच्चे हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं। अब तीनों चीजें टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि जिसका डिवोर्स हुआ है वो चिल कर रहा है, उसको कोर्ट के चक्कर काटने हैं। ठीक है, जिसके बच्चे हुए उसको घर पे रहना है, और जिसकी नई नई शादी हुई है उसे अपनी स्पाउस को टाइम देना है। तो क्या आप दोस्त बुरे हो गए? नहीं ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन पॉजिटिव टॉक्स। And thanks to you. पार्ट 2 बनाएंगे हम। हाँ, प्लीज पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। जरूर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर डीएमिंग मी। बिकॉज अगर आप डीएम नहीं करते, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आता कि मुझे किसी पॉडकास्ट में जाना चाहिए, आई एम नॉट दैट पर्सन। तो बिकॉज यू डिड दैट एंड आई वाज लाइक या इट्स गोइंग टू बी योर फर्स्ट पॉडकास्ट, व्हाई नॉट, इट्स ओके। एंड टू मीट समवन न्यू, सच अ गुड थिंग ना। For me, it was like I had seen you in Dev Didi and in Khauf as well. So I thought she has a story. She might have a story. So I just DM'd. और ये तो मेरा ऐसा routine हो गया है कि the people who I feel like they have a story, ना, I DM them. But that's a very sweet of thing कि आप लोगों को reach out कर रहे हो. Reaching out is so important. Very important. Very important. Drop your ego. It's okay. मैंने तो स्टार्ट में लिटरली आई वुड से व्हेन आई वाज कोलैबोरेटिंग ऑन रील्स 1000 से ज्यादा डीएम्स किए थे मैंने शुरुआत में, कि सिर्फ कोलैब करने के लिए। इन द बिगनिंग व्हेन आई वाज नॉट डूइंग पॉडकास्ट, फिर पॉडकास्ट के लिए फिर धीरे धीरे इन द बिगनिंग फॉर 6 मंथ्स बहुत ऐसे गेस्ट को भी करता व्हिच वाज नॉट दैट वर्दी,
बट धीरे धीरे समझ गया कि दिस पर्सन, इनकी स्टोरी है, रिसर्च करना है, पता करनी है इनकी कहानी. And I love that. I love researching about people and then having a conversation and something wonderful comes out. As today it came. I hope so. Yeah. Yes, it did. Sure. Then thank you so much once again and tada bye bye. Bye bye.